Effect of catalyst. Effect of a catalyst. ठीक, तो increasing concentration, then reaction will move in that direction where concentration is less. If you are increasing pressure, reaction will move in that direction where pressure is less. If you are increasing volume, volume का मतलब हो गया concentration equals to number of moles divided by volume. So on increasing volume, concentration will decrease. So given reaction will move in that direction when concentration is decreased by more factor. And then after temperature, temperature wala was most important one. What was that temperature के लिए? Specially मैंने बोला था कि if you are taking endothermic reaction, if you are taking endothermic reaction and on increasing temperature, reaction will move in forward direction. And for exothermic reaction, the most important I told you, exothermic के लिए on increasing temperature will move in backward direction. Example में मैंने लिया था कि ये शुगर हो गया, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे हीट देना पड़ेगा, इसीलिए अगर तुम वाटर में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करो तो हीट विल बी रिलीज एक्सोथर्मिक. शुगर को वाटर में डिसॉल्व करो तो बिकम कूल, इट विल एब्सॉर्ब द एनर्जी. ठीक है ना? दैट्स व्हाई इट विल फेवर एट हाई टेम्परेचर. एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स एट लो टेम्परेचर. आ जाओ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट होता क्या है? व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो होगा जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना? So please write down. Therefore, those reactions which are not participating in, those reactions which are not participating in those reactions which are not participating in those reactions which do not participate in chemical reaction and can increase or decrease the rate of the reaction. Or can increase or decrease the rate of the reaction. ओके, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है. ओके, तो लिखो कैटलिस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स. अच्छा, उससे भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट खूब स्टार मार्क लगा करके लिखा. लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लिखो कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. मतलब डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है. Sir, can you please repeat? हाँ, catalyst do not alter the direction of the reaction. Catalyst do not alter the direction of the reaction. मतलब डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है. Catalyst do not alter the direction of the reaction. Catalyst do not alter the direction of the reaction.
उसके बाद लिखो इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, बट इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, देखो कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, पूरा डिटेल में मैं करा देता हूं। लिखो catalysts are of two types. Catalysts are of two types. First लिखो पॉजिटिव कैटलिस्ट, तुम लोग पूरा लिखो पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव कैटलिस्ट। सेकंड लिखा नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकंड लिखा नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक, लिखो पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए लिखो, लिखो those catalysts which will increase the rate of the reaction, those catalysts which will increase the rate of the reaction those catalysts which will increase the rate of the reaction those catalysts which will increase the rate of the reaction are called as positive catalyst. ठीक, नेक्स्ट लिखो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा, देखो those catalysts which will decrease the rate of the reaction those catalysts which will decrease the rate of the reaction those catalysts which will decrease the rate of the reaction are called as those catalysts which will decrease the rate of the reaction are called as negative catalyst. एक होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा इज कॉल्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट। अब ध्यान से देखो, किसने बोला ये गलत इंफॉर्मेशन है तुम लोग के पास कि कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। Most of the students, even after clearing 11th class and 12th class, they will say the same thing कि catalyst increases the rate of the reaction. अरे कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा था, इंक्रीज किया, उसमें ऐड किया, फास्ट कर देगा। कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा था, कैटलिस्ट ऐड किया, फास्ट कर देगा। कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा था,
ऐड किया स्लो कर देगा, कुछ भी हो सकता है। अरे दर्शन क्या बोल रहा है सर, निगेटिव कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे? रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, पर ऐसा 1 सेकंड के अंदर हो जा रहा है, तो कुछ नोट ही नहीं कर पा रहा है। मैंने जानबूझ करके उसको स्लो कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन, अब मुझे आराम से हो रहा है। ठीक दर्शन, यस। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। वो तुम्हारे ऊपर है कैसा है चाहिए तुमको। ठीक, कसा पाइजे अकॉर्डिंग टू दैट ऐड करो कैटलिस्ट। वेरी फास्ट हो रहा है, स्लो करने के लिए निगेटिव कैटलिस्ट, बहुत स्लो हो रहा है, ऐड कर दो पॉजिटिव कैटलिस्ट, लाइक दैट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता होगा। तो लिख लो उस लाइन सबको छोड़ करके नीचे लिख लो कैटलिस्ट, या हेडिंग लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, पूरा डिटेल में मैं करा दे रहा हूँ। सर कैटलिस्ट, यस। आप पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल दे सकते हैं क्या? वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, Sir, चलो हाँ बोलो। positive cat होगा तो amount of product will be formed in less time, right? हाँ और negative catalyst होगा तो amount of the product formed in more time. यस, Okay. वही 2 मोल पता चलता था जो 5 मिनट में बनता था, पता चलेगा कि 20 मिनट में बन रहा है, ऐसा। हाँ, got it, sir. ओके, गॉट इट, Yes, yes. यस। आ जाओ लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। पॉइंट नंबर 1, लिखो कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। पहले भी लिखा था कैटलिस्ट डू नॉट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। Catalysts do not alter the direction of the reaction. Second लिखो most important one, catalyst do not change the enthalpy of the reaction. कल दिखाया था थोड़ा सा ग्राफ में। Catalyst do not change the direction of the reaction. Catalyst do not change the enthalpy of the reaction. Next लिखो catalyst provides alternate path to the catalyst provide alternate path to the reaction. ठीक, चलो भाई और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग अभी नहीं बता रहे,
बस इतना ही रहेंगे। लेकिन एक चीज याद है, कैटलिस्ट डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। आ जाओ भाई, चलो लिखते हैं प्रॉब्लम्स कुछ। मृणाल बोले रिपीट करिए लास्ट पॉइंट। मैंने बोला था कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अल्टरनेट पार्ट टू द रिएक्शन, जिसकी वजह से फास्ट या स्लो हो जाता है ना। लिखो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट। Which of the following may be correct? दर्शन बोले सर ये जो सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट में ही आ जाता है, क्योंकि अगर एंथैल्पी चेंज होगी तो डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, आता है समझ में तो अच्छी बात है। लिखो, which of the following may be correct? Which of the following may be correct? चलो ऐसा लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लिखो प्लीज। लिखो, ऑन इंक्रीजिंग concentration, reaction will move in backward direction। सेकंड लिखा मैंने, ऑन increasing pressure reaction will move in backward direction। on increasing pressure reaction will move forward direction। on increasing concentration reaction will move in forward direction। बोलो कौन सा करेक्ट है? This is now the turn of application, whatever I taught you। बोलो क्या होना चाहिए? अप्लाई करो, टेक्स्ट बुक में दिया है ये। वन एंड टू, अविदा बोल रही है 1 and 2, दर्शन 1 and 2 सही बोल रहे हैं। 1 and 2, रितायन, रेवा, रेवती, रेवती तो है ही नहीं। बोलो हर्षित, मंजरी बोल रही है फर्स्ट, मैथिली, बोलो। चलो भाई देखते हैं अभी क्या था। सपोज यू आर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन,
तो प्रोडक्ट साइड का कोएफिशिएंट कितना है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 2, तो 2 टाइम्स इंक्रीज। इधर कितना कोएफिशिएंट 1, 1 टाइम इंक्रीज, प्रोडक्ट साइड ज्यादा इंक्रीज हो गया ना, सो प्रोवाइडेड रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। प्रेशर का भी कुछ ऐसा ही था, अगर याद हो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन प्रूव करके दिया। तो इफ यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर, then product side 2 times increase and left side 1 time increase, so provided reaction will move in backward direction, इसलिए ये उसके just opposite है। Any problem please, any doubt please? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। So let us move to next problem। और ये चैप्टर हम लोग का होता है इति समाप्त। चैप्टर हम लोग का एंड होता है। लिखो ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम लिखो प्लीज, लिखो N2 2 NS3। स्टेट यहाँ पे लिख दिया मैंने, सपोज 250 किलो जूल, वॉट एवर इट मे बी रॉन्ग इंफॉर्मेशन 250, क्योंकि एक्यूरेट मैंने नहीं लिखा है, मैंने अपने से बना करके लिखा है। बट फंडामेंटल पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सॉरी नॉट पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 लिखो, when volume is suddenly halved, when volume is suddenly halved, सर सडनली के बाद क्या कहा? suddenly halved, halved मतलब हाफ कर दिया है। When volume is suddenly halved, when volume is suddenly halved, then reaction will move in backward direction। सर मूव इन के बाद when volume is suddenly halved, then reaction will move in backward direction। Point number 2, पहले में हमने क्या किया, वॉल्यूम हाफ कर दिया पहले वाले से। नाउ द नेक्स्ट वन लिखो, when some N2 is added, 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 then reaction will move in, forward direction।
Okay. Third one. लिखो लिखो if some NH3 is removed, then reaction will move in forward direction. If some NH3 is removed, then reaction will move in forward direction. Next लिखा high pressure and low temperature will move. So high pressure and low temperature will favor backward direction. High pressure and low temperature will favor backward direction. देखो कौन कौन सा हो सकता है, which one may be right, which one may be right. सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर यहाँ पे वो 250 किलो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब वो एक्सोथर्मिक है ना, तो फिर वो Yes, यही तो समझना है। ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड लिखा है ना, प्रोडक्ट साइड का मतलब है निकल रहा है, सो दिस रिएक्शन इज एक्सेप्टेबल। सर तो वो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं ना? क्यों नहीं इक्विलिब्रियम में होगा, टेम्परेचर से क्या लेना देना है? नहीं मतलब एक्सोथर्मिक होगा तो बैकवर्ड मूव करेगा ना? ये किसने बोला कि हमेशा बैकवर्ड होगा? मैंने क्या लिखवाया है, अभी आते ही लिखवाया, क्या लिखवाया देख, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मुझे पता था इसलिए मैंने लिखा है, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा ना, ये किसने बोला कि हमेशा बैकवर्ड जाएगा? ओके सर, यस। अरे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बैकवर्ड जाएगा। यस सर। हाँ, इसीलिए हमने प्रॉब्लम्स को लिया है, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। और किसी का एनी डाउट प्लीज? नहीं है डाउट, ठीक है, देखो ट्राई करो प्लीज, प्लीज ट्राई इट फास्ट। चैत्राली बोले ऑप्शन थर्ड, सोहेश बोल रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड। बोल अथर्व। 4 पॉइंट का है, 4th पॉइंट क्या? फोर्थ लिखा है मैंने, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। सौरभ क्या होना चाहिए? चलो आते हैं, एक एक एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट, सी कितना था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर तूने वॉल्यूम को बेटा हाफ कर दिया तो ये 2 टाइम्स हो गया ना कंसंट्रेशन पहले के। इसका मतलब यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन देन product side 4 times increase, sorry, reactant side 4 times increase,
Product side 2 times increase, reaction will move in forward direction. मैंने क्या लिखवाया था? फर्स्ट किधर मूव किया था? Backwards, sir. It is moving in forward direction. Now if some N2 is added, तूने N2 ऐड किया, concentration of reactant become greater than concentration of product, so reaction भाग जाएगा forward. बिल्कुल सही है. Any doubt please? तूने reactant side कुछ भी ऐड किया will भागेगा forward. प्रोडक्ट साइड कुछ भी ऐड किया भागेगा बैकवर्ड. बोला if some N2 is removed, तूने N2 रिमूव किया, प्रोडक्ट साइड कम कर दिया, will move in forward direction. अब देखो Sir, NH2. what will happen if you are increasing pressure. So left side it will be increased by 4 times, क्योंकि coefficient 1 and coefficient 3 यानी 4 times, जबकि प्रोडक्ट साइड 2 times इंक्रीज हुआ. तो रिएक्टेंट साइड प्रेशर इंक्रीज मोर, so it will move forward direction. But टेम्परेचर पे आओ, since this reaction is exothermic, will favor at low temperature. तो बिल्कुल सही है. हाई प्रेशर करेगा फॉरवर्ड भागेगा, लो टेम्परेचर करेगा फॉरवर्ड भागेगा, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एनी प्रॉब्लम? सर फर्स्ट रिपीट करेंगे. फर्स्ट सर. हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट बोल रहे ना? हाँ सर. हाँ, अभी देखो तुमने वॉल्यूम को अगर हाफ किया, वॉल्यूम हाफ करने का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कम किया डिवाइडेड बाय में, कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड 4 टाइम्स इंक्रीज, राइट साइड 2 टाइम्स इंक्रीज, इसलिए क्या भाग करके जाएगा फॉरवर्ड. जबकि मैंने क्या दिया था कि बैकवर्ड मूव करेगा, इसलिए रॉन्ग. Sir, यस. fourth option explain कीजिए ना please. फर्स्ट वाला हो रहा है क्या, समझ में आया? सर वो थर्ड और फोर्थ गलत आएगा ना? हाँ, थर्ड और फोर्थ तो गलत आएगा ना? गलत क्यों आएगा? तू जिधर से रिमूव कर देगी, NH3 रिमूव करेगा तो NH3 का कंसंट्रेशन कम कर दिया ना प्रोडक्ट साइड. अगर प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन कम हो गया है तो विल मूव प्रोडक्ट साइड. अब तुम इसमें H2 रिमूव कर लो. अगर तू H2 रिमूव कर लेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, बैकवर्ड भाग जाएगा. H2 ऐड कर दे, रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, फॉरवर्ड भाग जाएगा. ऐसा. अब देखो इफ हाई प्रेशर किया तो रिएक्टेंट साइड कोएफिशिएंट 4 है, 4 टाइम्स इंक्रीज. प्रोडक्ट साइड कितना है 2, तो 2 टाइम्स इंक्रीज. दैट्स व्हाई रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो रिएक्टेंट साइड 4 टाइम्स इंक्रीज, प्रोडक्ट साइड 2 टाइम्स इंक्रीज. तो ऑप्शन 4 गलत होगा ना सर? अरे तो फॉरवर्ड मूव कर रहा है ना. सर आपने सर ऑप्शन आपने बैकवर्ड दिया बैकवर्ड दिया है. बैकवर्ड लिख के दिए हैं. ऐसा है क्या? यस तो नहीं सर. कर रहा हूं. हाँ सर. तब रॉन्ग है, ये फॉरवर्ड मूव करेगा. ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? नो सर. No sir. नो No सर. sir. तो फोर्थ वाला रॉन्ग है भाई, फोर्थ वाला रॉन्ग है. इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि हमने बैकवर्ड दे दिया. आई थिंक व्हाई नॉट. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो.
देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1, on adding NH4SH, reaction will move forward direction. ठीक, on increasing pressure, reaction will move in backward direction. Okay. On increasing temperature, reaction will move in forward direction. Next, on increasing temperature, reaction will move in backward direction. देखो जल्दी से, फास्ट। बोलो भाई, कौन कौन से ऐसा करेक्ट है? सिंपल प्रॉब्लम है ये, तो कोई टफ नहीं। सर हाँ बोलो। बोलो। कौन से करेक्ट आए और किसके किसके आए? अच्छा, सब लोग क्या आने लगे? अभिदा बोल रही है 3, सही बोले 1 2 3, चैत्राली बोले 2 and 4, श्रावणी 3 and 4। सबका एवरेज ले लूं मैं? स्नेहल बोल रही है 2 and 4, मंजरी 2 and 3, सब लोग के अलग अलग। साक्षी 3, एनालिसिस आना चाहिए बस, इससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। रिटायन, दर्शन,
सौरभ, दर्शन के आगे 1 2 3। चलो अच्छा, आ जाओ भाई, मैं देखता हूँ सब। आ जाओ इधर इधर। अब देखो, अब मेरी केमिस्ट्री, अब मेरी केमिस्ट्री, अब मेरी केमिस्ट्री। चलो देखो, NH4SH प्रोडक्ट साइड में अगर तू ऐड करेगा, अब मैं तुम लोग को बता दूं कि IIT का प्रॉब्लम है, बहुत पहले 80s में आए हैं। अब प्रोडक्ट साइड तू कुछ भी ऐड करेगा तो किधर भागेगा, बोलो। प्रोडक्ट साइड कुछ भी ऐड करेगा किधर जाएगा, फॉरवर्ड। Forward. फॉरवर्ड। किसी को प्रॉब्लम? नो। नो सर। No, sir. नो सर। तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फर्स्ट वाला इज राइट या रॉन्ग? सर वो रिएक्टेंट है ना? अरे रिएक्टेंट है तो क्या हो गया भाई, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट किस तरफ भागेगा ना। व्हेनेवर यू आर एडिंग एनी केमिकल सब्सटेंस, उसके अपोजिट भागता है। तो फर्स्ट वाला क्या है, रॉन्ग, राइट है रॉन्ग है? राइट सर। राइट है सर। राइट है। Right. हाँ, बट देखो ये रॉन्ग है, नहीं IIT ने सर दिया रॉन्ग है। है क्यों? सर, बैकवर्ड जाएगा ना। अरे कौन बोल रहा है ये, इतना सर, समझाने अभी के बाद बोल रहे? अरे जिधर ऐड करेगा उसके अपोजिट जाएगा ना भाई। तूने इधर ऐड किया तो फॉरवर्ड जाना चाहिए था। ये फॉरवर्ड मूव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए रॉन्ग है, इसलिए नहीं कि बैकवर्ड जाएगा। लिख लो, देयर विल बी नो इफेक्ट बिकॉज दिस वन इज सॉलिड। इसका मतलब है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ, जो बैकवर्ड बोल रहा है जो भी। फिर ये सब प्रॉब्लम कैसे किए? तू जिधर का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा उसके अपोजिट भागेगा ना। इन दिस वन सभी जगह में NH4SH में अगर ये गैस होता तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड ही जाता। सपोज इट वाज गैस, देन ऑप्शन A was right. Suppose NH4SH was gas, then A was right. This is solid, that's why there will be no effect. ठीक? Now, second, on increasing pressure reaction will move in backward. बिल्कुल सही है। इधर का कोएफिशिएंट 1 and 1 2 है ना, तो बैकवर्ड बिल्कुल भागेगा। पहले ये बोलो कि किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है, मुझे पता है कि आप तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा तुम लोगों के नो प्रॉब्लम सर। कि सर ये तो सॉलिड है, उधर कोएफिशिएंट एक भी नहीं है, तो फिर कैसे मूव करेगा। सेकंड बताइए, हाँ बोलो बोलो बोलो। सेकंड फिर से बताइए। हाँ, सेकंड आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन व्हाई प्रोडक्ट साइड में कोएफिशिएंट्स आर 1 and 1 and all are gaseous system। अगर तू प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड इट इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। इधर एक भी नहीं है बिकॉज दिस इज सॉलिड, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेफ्ट साइड कुछ है ही नहीं,
सॉलिड टाइप का है, उसको नलीफाई करने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन भाग जाएगा, क्योंकि इधर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, उधर प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में वी विल टॉक अबाउट reactions which are in gaseous state. नेक्स्ट लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तुम लोग ये बताओ ये फॉरवर्ड कैसे मूव करेगा, थर्ड वाला सब लोग राइट बोल रहे थे। अगर ये इंडोथर्मिक होता तो डेफिनेटली करेक्ट होता। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है एंड व्हाई। व्हाई भाई, ब्रेकिंग हो रहा है, ब्रेकिंग का मतलब है तू हीट दे रहा है ना। तुमको कैसे पता चला ब्रेकिंग हो रहा है? लेफ्ट साइड one chemical substance converted into two chemical substance means it is decomposition. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक, तो डिकम्पोजिशन है तो ब्रेकिंग हो रहा है। ब्रेकिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हीट दे रहा है, और हीट दे रहा है मतलब क्या हो गया, इंडोथर्मिक, विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अबिदा काही प्रॉब्लेम आहे का? No, sir. बोलो। अब बोला ऑन इंक्रीज, क्यों? पहले ऊपर वाला करेक्ट है तो नीचे वाला ही नहीं टाइम रहा। Is there any problem till now? No, sir. Is there any problem till No. now? No, sir. नहीं है। तो एक डेल्टा जी और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन होता था, वो मैंने नहीं करवाया हुआ है। अच्छा, एक टॉपिक इसका बड़ा ही अच्छा बचा रह गया भाई, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इसलिए हेडिंग लिखो, नेक्स्ट वन, रिएक्शन परसेंट। रिएक्शन परसेंट को डिनोट करते हैं क्यू। ठीक है ना? चलो भाई आ जाओ, तुम कोई भी रिएक्शन ले लो, सपोज दिस इज द रिएक्शन, ठीक? अगर ये तुमने रिएक्शन लिया और ये किसी भी टाइम टी पे रिएक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सपोज तुमने 10 मोल ले लिया, 10 मोल ले लिया, 10 मोलर ले लिया, ठीक? ये जीरो, किसी भी टाइम टी पर सपोज 5 मिनट पर ये कितना खत्म हो गया, 1 मोल, ये कितना खत्म हो जाएगा, 1 मोल 2 मोल बना रहा है। आफ्टर 10 मिनट सपोज
इसका 2 मोल खत्म, तो 2 मोल खत्म होगा तो उधर 4 मोल बन जाएगा। सपोज आफ्टर 30 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 3 का, और आफ्टर सपोज 50 मिनट के बाद ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। सपोज दिस इज 5, दिस इज 5 माइनस 10। तुमने ध्यान नहीं दिया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, उसके आगे भी एक्सपेरिमेंट कर डाला तुमने। 6 into 2, सपोज तूने उसके आगे भी कर डाला। अब आई सेड अब nobody will write anything now, तो Q1 is same as equilibrium constant expression wise, experiment number 1 इसलिए B1। Q2 is this one, experiment number 2, और ये देख रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम ही लिख रहे हैं सर, तो नहीं, they are expression wise same but value wise they are different। 2 का स्क्वायर बाई 8, 4 का स्क्वायर not 8, 9, this is 8। Q3, I said expression wise they are same, ऐसा हो गया, तो this is 6 का स्क्वायर अपॉन 7। ध्यान से देखो, Q4 is equals to K equilibrium, मतलब क्या हो गया, equilibrium constant is the special case of reaction quotient। Now Q5 is 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। तो वॉट एवर इज द डेफिनेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम सेम एज Q, but equilibrium constant is defined if and only if when equilibrium is established, when equilibrium is established। but अभी क्या हो रहा है, before equilibrium and after equilibrium, when equilibrium is not established, if you are writing the expression, then it is called as reaction quotient, but expression wise they are same। now what you can say कि this is the ratio of product of concentration of products and product of concentration of reactants, and stoichiometric coefficient will be respective coefficient power, बिल्कुल वही चीज है, but at any time, काही प्रॉब्लम आहे का? No, sir. तो पहले डेफिनेशन लिख लो, क्यों क्या होता है, हेडिंग लिखो रिएक्शन कांस्टेंट। सर एक डाउट हाँ बोलो। सर, अगर हम Q1 Q2 ऐड करें सब और जितने Q है उससे डिवाइड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। सर अगर हम ये सारे टर्म्स ऐड करें और उनको नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है क्या, या ऐसा जरूरी नहीं? नहीं ऐसा कोई जरूर नहीं है, कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा तो फिर पावर में जाना जरूरी है ना, इसलिए जो प्रोडक्ट का है और रिएक्टेंट का है उसको डिवाइड करोगे तो राइट आएगा, लेकिन कोएफिशिएंट के साथ, ठीक आया ना।
जैसा इक्विलिब्रियम में लिखते थे प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन उसका पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक मल्टीप्लिकेशन है, एक प्रोडक्ट बोल रहा हूं, दोनों सेम नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इट्स रेस्पेक्टिव पावर। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी यही था, बट वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। ये बिफोर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम Q बिकम K, बस यही है ना? सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। चलो लिखो। लिखो, दिस इज Q के लिए लिखो, रिएक्शन कोएफिशिएंट इज रेशियो ऑफ reaction quotient is reaction quotient is ratio of reaction quotient is ratio of product of concentration ratio of product of this is ratio of product of concentration of products रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स and product of concentration of reactants and product of concentration of reactants and coefficients will be respective power. सर कोएफिशिएंट के बाद क्या है? मैंने लिखा कि दिस इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and coefficients will be its respective power. At any time t. हाँ, at any time. उसके नीचे लिख लो, at equilibrium reaction quotient become at equilibrium at equilibrium reaction quotient become equilibrium constant. Sir, can you repeat? At equilibrium reaction quotient become equilibrium constant.
पहले इसको नोट करो या एक लाइन और भी लिखो। लिखो एक्सप्रेशन वाइज equilibrium constant and reaction quotient are same, सर एक्सप्रेशन वाइज उसके बाद क्या कहा? expression wise reaction quotient and equilibrium constant are same. But value wise they are different. But value wise they are different. उसके बाद लिखो, सभी लोग पूरा लिखना स्टार्ट करो। प्लीज राइट डाउन फास्ट। ये इसका राइट साइड का डाटा लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर, लिख डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जिसको कि मैं कल देखता हूं जानबूझ करके। ये डाटा कल मैं नहीं लिखूंगा, कल मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। ओके ओके सर। ओके सर। डायरेक्शन Okay, ऑफ द sir. रिएक्शन। यस Okay, sir. ओके थैंक यू। थैंक यू सर। Bye, सर ये sir. वीडियो लेक्चर अभी डाल दीजिएगा। सर क्या हुआ? ये वीडियो लेक्चर अभी डाल दीजिएगा। देखते हैं। सर हाँ बोलो। वो आपकी बुकलेट से वो 11 सिर्फ 11 के लिए है या 11th और 12th दोनों के लिए है? कौन सी बुकलेट? आपके क्लास की बुकलेट्स दो। 11th के लिए है। ओके सर। 12th का अलग है। थैंक यू सर। बाय सर। यस Thank you, sir. हाँ हाँ थैंक यू सर। बाय। यस बाय बाय। सब लोग को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। Happy Christmas, sir. यस